Good morning, everyone. Welcome to the course on prayer and intercession. सभी को सुप्रभात और आपका स्वागत करते हैं आज प्रार्थना और मध्यस्थी के नए पृष्ठ पे। We welcome those of you who have logged in online as well. ऑनलाइन सभी विद्यार्थियों को अभी स्वागत करते हैं। Shall we pray? I would like to read from Romans chapter 8, verses 14, 15, and 16. Romans chapter 8, verses 14, 15, and 16. रोमियो का अध्याय, रोमियो का पुस्तक 8 का 13 और 13 से 16 तक। For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Amen. रोमियो 8, 15 और 16। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, है पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की सुनते हैं। Father, परमेश्वर की संतान है। Father, we thank you, Lord. We thank you for this time, Lord God. Thank you that you are here in our midst, Father God. Father, thank you for this precious time that you've given each of us, Lord God, to learn from your word. Thank you, Lord, that we are able to come to you as we are crying out to you, Abba, Father. Father, we pray that you speak to each and every one of us, oh God. Thank you for listening to our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. So before we get into our session for today, we have a small activity. So if you have notebooks or you can take papers, I just want you to write why God has brought you here to STBC APC 2025. You don't have to answer this now. शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब एक छोटी सी क्रिया करें। अपने पास अगर नोटबुक्स या पेन वगैरह हैं तो आप लिख लें कि पर आप यहाँ क्यों आए हैं एसटीबीसी के लिए इस साल। So just write it down. So maybe when you're during your quiet time or as the Lord speaks to you, have an open heart. Just ask God, speak, Lord. Your daughter, your son is willing to listen. And what the Lord puts into your heart, please have it for your own records. तो ये आपको अभी जवाब देना नहीं है। अभी या कभी भी जब आप अपने व्यक्तिगत समय में जब परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो, उस समय भी आप लिख सकते हैं। जब भी आपके मन में ऐसा आए कि आप इस जगह क्यों आए हैं इस बार एसटीबीसी के लिए, और अपना हृदय जो है वो खुला रखें परमेश्वर से सुनने के लिए। Okay. So why do we pray? पहला कि हम क्यों प्रार्थना करते हैं, Or why should we pray? या फिर किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए हमें। This is not for you to write. So this is just for you to think and ये बस answer. आपको सोचना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। See, God is sovereign. Yes. Yes. Thank you. Relationship. Yeah. Communication. Yes. Thank you. So, God is sovereign and He knows everything. He knows exactly what we are going through. परमेश्वर सर्वत्र है और वो हर वो चीज जानता है जिससे हम गुजर रहे होते हैं। And in fact, He knows the best things for us. यहाँ की बल्कि वो तो हर वो अच्छी चीज जानते हैं हमारे बारे में जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो। Still, we are called to pray. तब भी हमें बुलाया गया है कि हम परमेश्वर को प्रार्थना कर सकें। So there is a purpose why the God of heaven, who's all sovereign, all wise,
still wants to have a connection with his children here on earth. तो तब भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है हम सबके प्रति, विश्वासियों के प्रति, परमेश्वर के बच्चों के प्रति, कि हम क्यों परमेश्वर की ओर प्रार्थना करें। So, because he wants to establish this connection, that is done in prayer. तो क्योंकि परमेश्वर ये जो संबंध है वो हमारे साथ नियुक्त करना चाहता है, इसीलिए हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है। If we see the Lord's Prayer, so Jesus is teaching us to pray, may your will be done here on earth just as it is in heaven. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो प्रार्थना है उसमें ये दिखाया गया है कि आपकी इच्छा पृथ्वी पर वैसी ही हो जैसे स्वर्ग में। So although he can function separately, he knows what he's doing. He has chosen to be in partnership with us. How wonderful is that? तो जबकि वो ये जानते हैं अच्छी तरह कि वो किस तरह से अपनी कार्यों को करते हैं, तब भी वो चाहते कि हम उनके साथ सहभागी हो, ताकि हम प्रार्थना में उसके साथ सहभागी रह सकें। Yeah, so prayer is all, as you said, it's a communication, it's a relationship with the Lord. जैसे आपने कहा, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संवाद या वार्तालाप का एक या रिश्ता या संबंध का होता है। To understand the purpose of prayer, so let us go into Genesis. तो प्रार्थना का जो उद्देश्य है, इसको बेहतर समझने के लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक देखेंगे। So if we see Genesis 1:26 and 27, God had given authority to man, and he had commanded him to be fruitful and multiply. तो उत्पत्ति का पहला अध्याय 26 और 27 वाक्य देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। So we read in the Bible that God has given dominion over the work of our hands, and he has put all things under our feet. That was the dominion given to us in the beginning. तो हम देखते हैं शुरुआत में कैसे परमेश्वर ने अपने सारे मनुष्यों को जो पृथ्वी पर हैं उन पर प्रभुता दी है। And in Psalms 8 verses 5 and 6 we read, you've made man lower than the angels. तो भजन संगीता के 8वें अध्याय 5 और 6 पद में ये लिखा है, स्वर्गदूत ने थोड़ा कम, यानी कि अगर आप जाएंगे, कोई पढ़ सकेगा मेरे साथ भजन संगीता? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। Thank you. So the original authority that was given to God was given to man, but because of the fall, it was handed over to Satan. तो जो शुरुआत में जो अधिकार है परमेश्वर ने वो इंसान को या मनुष्यों को दी थी, लेकिन जब मनुष्य जो है वो गिर गया पापों में, तो फिर वो शैतान के हाथ में आ गए। Because the Bible says, but the earth he has given to the children of men. क्योंकि वचन में ये लिखा है जो भूमि है वो परमेश्वर ने अपने बच्चों के हाथ में दी थी। So when Jesus was tempted by the evil one of the temptations was he asked Jesus that I will give you all the authority in the world if you bow down before me. तो जो एक लालसा, टेम्पटेशन लालसा होगी, तो एक लालसा जो जो शैतान ने यीशु मसीह को दी थी, वो ये था कि
अच्छा, लालसा के कारण वो उनको दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको नकार दिया। So Jesus did not refute that claim, but instead he's overcoming the temptation using God's word that you should bow only to the true living God. तो परमेश्वर ने उसको सिर्फ नकारा ही नहीं, परंतु शैतान को ये कहा कि तुम्हें परमेश्वर के वचन में, ये पवित्र बाइबल में जैसा वचनों में लिखा गया है, उसके द्वारा तुम्हें उसके ऊपर जीत पानी है। We also see in John chapter 14 verse 30 that the Bible mentioned the devil is the prince of the world. यूहन्ना का 14 अध्याय का 30वां पद, उसमें देखेंगे कि उसमें ऐसा लिखा है कि जो शैतान है वो दुनिया का राजा है। So because this world, the authority belongs to the evil one, we are God's children and we are proclaiming the good news of Jesus here on earth, representing Jesus. तो क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि हम लोग परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं, तो हम परमेश्वर के वचन की घोषणा यहाँ भूमि पर करते हैं। So the only way that we can do God's will here is through prayer according to the revealed will of God. तो एक ही तरीका है जिससे हम प्रार्थना कर सकते हैं, और वो है परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, और वो हमें वचन के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया है। God declares his will, his word to us, and we prayed into fulfillment. परमेश्वर अपना वचन और अपनी इच्छा जो हमें वचन के द्वारा दिखाते हैं, और हम उनकी ओर प्रार्थना करते हैं इससे। So in Old Testament we can see the example of Elijah. पुराने नियम में हम देखते हैं एलिय्याह के एक उदाहरण के ऊपर। So in 1 Kings chapter 17 he goes to King Ahab according to the word of the Lord and telling him that it is going to rain because God's word spoke to him. तो हम देखते हैं पहले राजाओं का पुस्तक में 17 1 Kings 17 ओके। तो 17वें अध्याय जो पहले राजाओं का है, उसमें ऐसे कहा गया है कि yeah, so I'm just paraphrasing that. So 3 years it did not rain according to God's word. तो वचन के अनुसार 3 साल वहां पर पहले कोई बारिश नहीं हुई थी। So after that the word of the Lord is heard by Elijah. उसके बाद एलिय्याह को परमेश्वर का वचन सुनाई दिया। So he goes to the king and proclaims that it is going to rain when there is no sign of rain. तो वो राजा के पास जाकर ये बताते हैं कि अभी बारिश होने वाली है, जबकि वहां पर बारिश की कोई भी संभावना नहीं थी। So in his spirit he knows because God has said it, it is going to rain. वो अपनी आत्मा में ये समझते थे कि क्योंकि परमेश्वर ने उनसे ये कहा था, तो अब आगे जाके बारिश होने वाली है। In fact he says, I hear the sound of abundance of rain. जबकि उसमें ऐसा लिखा गया कि वो बहुतायत से बारिश हो रही थी, ऐसा वो सुन पा रहे हैं। When the land was completely in famine. जबकि वो जमीन जो है उस पे सूखा पड़ा हुआ था काफी। So after hearing God's voice, what did Elijah do? तो जब वो परमेश्वर की आवाज सुने तो एलिय्याह ने क्या किया? God has proclaimed in his word, so Elijah can carry on his work, right? तो परमेश्वर ने अपना वचन तो कह दिया कि जो वो क्या करने वाले हैं भविष्यवाणी में, लेकिन अब एलिय्याह अपना काम करने लगा। It is God's work to produce the rain. ये परमेश्वर का काम है कि वो वहां पर बारिश दे, because God told it. क्योंकि परमेश्वर ने कहा उनसे। So what does Elijah do? He goes and he kneels down and he hides his face between his legs and he starts praying. तो एलिय्याह क्या करता है? वो जाकर अपने घुटनों के बीच में सर छुपाकर वो परमेश्वर से याचना प्रार्थना करने लगता है। And this is not an ordinary prayer because he sends his servant out each time to check if it's going to rain. क्योंकि ये एक साधारण प्रार्थना नहीं है, क्योंकि हर बार वो अपने जो दास को बाहर भेजता है देखने के लिए कि बारिश हो रही है या नहीं। First time the servant comes back,
there is no sign of rain, there's no clouds. तो पहली बार जब वो दास जाके बाहर देख के आता है तो उन्हें कोई भी चिन्ह नहीं दिखता, एक भी बादल नहीं दिखते बाहर बारिश की। The same thing happens second, third, fourth, fifth, and sixth. There are no clouds for rain. तो वो हर वो बार दूसरी तीसरे छठे बार तक वो अपने दास को बाहर भेजता है देखने के लिए कि अगर कुछ दिख रहा है, कोई बादल अगर, तो कुछ भी नहीं दिखता उन्हें जब भी वो बाहर जाके देख के आता है तो। But on the seventh time, पर he could सातवीं see बार, cloud in the size of a hand. तो सातवीं बार जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें बादल दिखते हैं अपने जो हाथ के आकार पे। So how do we know that Elijah prayed persistently? तो हमें कैसे पता चलता है कि वो एलिय्याह लगातार प्रार्थना कर रहा था? Shall we turn our Bibles to James chapter 5, verses 16 to 18? याकूब 5 का 16 और 18। Yeah. I'll read verse 17. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. Also, it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth produced its fruit. याकूब का 5वां अध्याय 17 वाक्य से पढ़ूंगी। एलिय्याह भी तो हमारे सामने दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ नहीं बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। So, what does it say here? Elijah was a man with a nature like ours. Can we underline that? Nature like ours. उस चीज पर रेखा लगाएं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो एलिय्याह था वो हमारे समान ही था, हमारे जैसे एकदम बिल्कुल हमारे ही सुख दुख भोगी जैसे मनुष्य होते हैं वैसे ही। Can everyone say nature like ours? He prayed earnestly. So, if Elijah prayed and God could answer that earnest prayer, how much more, what a privilege it is for you and I. When we pray, God hears us. आमीन। तो परमेश्वर ये कहता, वचन ये कहता है कि अगर एलिय्याह ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया, तो कितना ज्यादा अधिक और हमारे पास ये अधिकार है कि हम प्रार्थना कर सके और ऐसे उत्तर ले सके। So sometimes we think it's only for certain people. कभी हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ किन्हीं गिने चुने लोगों के लिए है, But prayer is a privilege given to each and every one of us. तो प्रार्थना एक ऐसा अधिकार है जो हर वो व्यक्ति को दिया गया है, हम सबको दिया गया है, And the living God hears us. और जो जीवित परमेश्वर है वो हमें सुनता है। So similarly, we have another example. So about Daniel. एक और उदाहरण है यहाँ देंगे, वो है दानियेल के बारे में। So even Daniel, he came to know about the prophecy of Jeremiah that his children will return to Jerusalem after 70 years of exile in Babylon. तो यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि कैसे उसके बच्चे जो है वो परेशानियों में रहकर वापस आते हैं, इस बारे में। So when he knew the time had come, Daniel prayed that prophecy into fulfillment. तो जब उन्हें पता चला कि समय आ गया है तो वो उस भविष्यवक्ता के लिए प्रार्थना करने लगे। And we know that during the times of King Cyrus, the exile, whoever went to exile returned back. The king was moved and he sent back. तो हम ये जानते हैं कि साइरस राजा के समय पे जो सब उस जगह पर थे वो सब वापस भेजे गए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय को बदला था उनको वापस भेजने के लिए। So these are examples, few examples from the Old Testament. We have many, but what is the place of the church right now here? तो हम बहुत सारे उदाहरण ऐसे देंगे देख चुके हैं अभी जो पुराने नियम में हैं, लेकिन कलीसिया के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? So we read in Matthew 16:18, I will build my church and the gates of hate shall not prevail against it. मत्ती 16:18 में कोई पढ़ेगा अगर किसी ने खोल लिया है तो।
And we see that God has given us the keys of authority. So whatever we bind here in the name of Jesus, it is bound in heaven. And whatever we release in the name of Jesus is released in heaven. तो हम ये जानते हैं वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम जिस चीज को यहाँ बांधते हैं धरती पर या भूमि पर, वो स्वर्ग में भी बंध जाता है, और जिस चीज को हम यहाँ पर खोल देते हैं वो स्वर्ग पर भी खुल जाता है. So you and I have the authority to release the love of Jesus, the joy of Jesus, the peace of Jesus that we enjoy here on earth in the name of Jesus, and it is done. तो हम सबके पास ये अधिकार है कि हम परमेश्वर की जो प्रेम है और आनंद है और उनकी जो शांति है वो हम यहाँ जमीन पर अपने आपस में या सभी के बीच में उसको दान कर सके या दे सके, क्योंकि ये उनका हमारे ऊपर आशीष है. And all the evil things that the evil one has planned against us, not to grow in the Lord, and against the love and joy and peace, we bind it in the name of Jesus. और जो शैतान हमारे खिलाफ जो चीजों को रखता है, ऐसी चीजों को हम परमेश्वर के नाम से बांधते हैं. So this is the purpose of the church here, and what a privilege that is for us. और ये कलीसिया का उद्देश्य है यहाँ जमीन पर, और ये हमारा कितना बड़ा अधिकार है. Yeah. Jesus has finished everything for us on the cross. He died and took our place, and he is alive again, and our sins are forgiven. And that is why in the name of Jesus, when we pray, everything is done. तो जब यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर वो चीज जो हमें चाहिए वो हमें मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान को दिया और हमारे लिए जी उठे. So then we see that although Jesus can do he can exercise his authority without us, he chooses to do it through us. तो यीशु क्या है, जो है कि हमारे जो अधिकार को वो ले सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, लेकिन वो ये चुनते हैं कि वो हमें वो अधिकार दे कि हम उनसे मांग सकें. If we see in Jeremiah chapter 33 verse 3, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. यिर्मयाह का 33 और 3, 33 का तीसरा पद. यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरा सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता. So when we call upon the name of the Lord, जब हम परमेश्वर का नाम पुकारते हैं या he बुलाते will हैं, show us great and mighty things, unsearchable things, only when we call. तो वो हमें बहुत ही बड़ी बड़ी और सामर्थी चीजें दिखाएंगे जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं. And also in the New Testament, we see the life of prayer in Jesus. तो हम नए नियम में यीशु मसीह का जो प्रार्थना जीवन था वो भी देखते हैं. So in Luke 11, chapter 11, verse 1, we read, now it came to pass as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. तो लूका 11:1 में देखेंगे, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था. जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे. So it is interesting to note that the disciples were with Jesus. So they did not ask like, how do you do the miracles or how the signs and wonders, but they asked Jesus to teach them to pray. तो एक चीज हम देखेंगे बहुत दिलचस्प है ये कि जो चेले थे यीशु मसीह को कभी ये नहीं पूछा कि आपने कैसे ये सारे अद्भुत कार्य किए, पर उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि यीशु मसीह तुम प्रार्थना कैसे करते हो.
So how much they would have observed the prayer life of Jesus. तो उन्होंने कितना ध्यान दिया होगा यीशु मसीह की जो प्रार्थना जीवन है उस पर। So they were waiting for him to stop praying and they asked, teach us how to pray. तो वो इस चीज की अपेक्षा कर रहे थे कि कब यीशु मसीह प्रार्थना बंद करें, और तब उन्होंने उनसे पूछा कि यीशु मसीह आप कैसे प्रार्थना करते हैं। So I remember a time when I was very small. मुझे याद है जब मैं बहुत ही छोटी थी, So my mother used to pray early in the morning around 4:30. तो मेरी माँ Loudly. जो है वो सुबह 4-4:30 बजे उठकर प्रार्थना करती थी। So we were 3 siblings. We were all sleeping in the same room. We had to close our ears. Such loud were her prayers. तो हम 3 भाई बहन थे और हम उसी कमरे में जब सोते थे तो हमें अपना कान बंद करना पड़ता था जब But I हमारी be- माँ प्रार्थना करती थी। But I believe that is the seed which the Lord has sown within me, that today I earnestly seek to pray more than anything else. तो मेरा ये विश्वास है कि ये वो बीज है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में बहुत ही छोटपन से डाला था, जिसकी वजह से आज मैं प्रार्थना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। And we read in Ezekiel chapter 22. I'm just paraphrasing that. So God seeks for one man who's standing in the gap to pray and protect the land or others, to intercede for others. तो यहेजकेल के 22 के अध्याय में 29 से 31 तक उस चीज को वो सारांश में बता रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो अपनी जो राज्य है, अपने जमीन के लिए उनके बीच खड़ा हो। So God's heart is always for someone who prays for others, for the nation, to save the lost. तो परमेश्वर का हृदय हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढता है जो जिनका हृदय दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए और जो खोए हुए लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए होता है। So that is the heart of the Lord. वो है परमेश्वर का हृदय। So if we are that one person standing in the gap, how pleasing it would be for the Lord. तो अगर हम वो एक व्यक्ति हैं जो बाकी लोगों के लिए खड़े होते हैं उनके बीच में, तो परमेश्वर कितना आनंदित या खुश होगा हमसे। God has chosen each of us to pray. परमेश्वर ने हर एक को हमसे चुना है कि हम उनसे प्रार्थना कर सके, Do His will here on earth. उनकी इच्छा को यहाँ भूमि पर कर सके। Align our thoughts and our purposes towards God's will and His purposes and His thoughts. तो हमारे उद्देश्यों को, हमारी इच्छाओं को परमेश्वर के प्रति हम एकत्रित करें ताकि हम उनके इच्छा अनुसार चल सकें। So whatever He decides there in heaven is done on earth through us. तो वो जो स्वर्ग में जिस चीज को सोच लेते हैं उसी को, या उनकी जो इच्छा होती है उसी को हम जमीन पर या यहाँ पृथ्वी पर करते हैं। Are you all excited to know the सब purpose उत्साहित of है इस prayer? बात पे, So प्रार्थना के hereafter prayer उद्देश्य is को no, जानने के लिए। hereafter prayer is no longer boring. तो आगे से प्रार्थना जीवन बिल्कुल ही बोरिंग का क्या होगा, बोरिंग नहीं होना चाहिए। Who's hearing us? कौन सुन रहा है हमें? The King of Kings, the Lord of राजाओं का Lords. राजा, Whether प्रभुओं का प्रभु। whether anyone else is there or not, whether they're going to hear or not, He is eagerly looking for someone to pray, and also He is willing to listen to what we pray. तो चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आप इस बात का याद रखें कि परमेश्वर जो है वो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए बेताब है और वो अपेक्षा कर रहा है आपसे सुनने के लिए। Okay, so just to a few points why we are praying. We pray because we are following God's design. तो हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की जो रचना है उसको उस पे बढ़ने की कोशिश करते हैं। And we pray because through prayer we are able to fulfill our place of authority here on earth. तो हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम परमेश्वर की जो अधिकार को हम पृथ्वी पर सफल करने की कोशिश करते हैं। And we pray because helpless people need prayer. हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि असहाय लोग हैं, उनको प्रार्थना की आवश्यकता होती है। Because sometimes we might not be able to pray for us. क्योंकि कई बार जो होता है हम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। We might be going through some challenges or situations. हम किन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, So that is when we are called to pray for others. तो तब हमें बुलाया गया है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें। And
we see that in Matthew chapter 6, verses 5 and 6. I would like for us to read that. And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by man. Assuredly, I say to you, for they have their reward. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. मत्ती 6:5 और 6 पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के सामने न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यदि हम प्रार्थना नहीं So, when we pray, we are called to pray in secret. तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें बुलाया गया है कि हम गुप्त स्थान में रहकर प्रार्थना करें। And who sees us in the secret place? और कौन देखता है जब हम अपने गुप्त स्थान से प्रार्थना करते हैं? God sees each time we pray. परमेश्वर हमें हर वो बार देखता है जब हम उनकी ओर प्रार्थना करते हैं। And he rewards us openly. और वो हमें खुले दिल से प्रतिफल देता है। So how good it is to receive a reward from the Lord Almighty. तो ये कितनी अच्छी बात है जो हमें परमेश्वर से प्रतिफल मिलता है। So when we pray, God definitely rewards us. तो जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जरूर हमें प्रतिफल देता है। So a prayer is communion with God, and sometimes it's warfare against the evil forces using the authority we have in Jesus. तो प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ संवाद करना या वार्तालाप करना है, और युद्ध आत्मिक युद्ध भी है जो हम आत्मिक जीवन में करते हैं या आत्मिक स्तर पर करते हैं। So God sees me for who I am, and he teaches me to position myself rightly before God. तो परमेश्वर देखता है कि मैं कौन हूँ और वो मुझे ऐसे स्थान पर रखता है कि मैं परमेश्वर के आगे के स्थान पर खड़ा हूँ। And we receive everything what he has ordained for us. और हर वो चीज हमें उनसे मिलती है जो उन्होंने हमारे लिए रखी हुई है। So when we position ourselves in prayer exactly according to what God has told us to, तो जब हम प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के सीधे रखते हैं और हर वो चीज जो वचन के अनुसार होती है, तब परमेश्वर हमें, so by grace we receive everything. तो परमेश्वर की दया से हमें हर वो चीज मिलती है। So how many of us are excited to pray? तो हम में से कितने लोग हैं जो प्रार्थना करने के लिए उत्साहित हैं? Praise God. And we'll see few things that how we should not pray. तो हम ऐसी कुछ चीजें देखेंगे जैसे हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। So if we do not pray, what happens is we lose the opportunity to invite God to work in our own life situations, in our circumstances. तो हम अगर प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम ऐसी चीजों को हराते हैं कि हम अपने परिस्थितियों में या परेशानियों में परमेश्वर की ओर परमेश्वर से वो ले नहीं पाते हैं। And we also fail in the responsibility that he has given us. और हम उन दायित्वों पर भी हार जाते हैं जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। And we fail to receive God's plan and purpose into our lives. और हम परमेश्वर का जो उद्देश्य है या योजना है हमारे जीवन के लिए, उसे पाने के लिए भी असफल हो जाते हैं। Okay. So with this in mind, we'll see the foundation for a prayer life. So that is something which is crucial for our prayer life. तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे और दूसरे अध्याय की तरफ जाएंगे जो है प्रार्थना की बुनियाद। So what is a foundation? A foundation is something, if you look at a building, the foundation has to be really strong. तो जब हम किसी एक इमारत की तरफ देखेंगे तो उसकी जो नींव होती है वो बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग या
मजबूत होती है। If the foundation is not strong, then the building itself is shaky. अगर इमारत की बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो वो इमारत हिलने लगेगी। How many of us understand what is it, the foundation for a construction for a building? तो एक घर या एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो बुनियाद चाहिए, इसके बारे में कौन समझता है? आप में से कितने लोग इस बात को समझते हैं? So it is very important that the foundation is very strong. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो बुनियाद है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। So we are going to learn certain principles for a good prayer life that is vibrant and strong in the Lord. तो हम ऐसी कुछ चीजों के बारे में सीखेंगे जो एक मजबूत प्रार्थना जीवन के बारे में बताता है और किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सके। So we should not say prayer as a ritual. तो हम प्रार्थना को किसी विधि की तरह रोज नहीं करनी चाहिए। You know, ritual is something like you keep doing without even thinking, just for the sake of it. तो ये बस ऐसे एक विधि की तरह ना करे, बिना सोचे कि रोज रोज करना है, बस इसीलिए करते रहें। And we should not say prayer as an obligation or a religious duty because you're a Christian, you're just praying. तो इसलिए भी ना करें कि ये किसी तरह का कोई दायित्व या धार्मिक कर्तव्य है, इसीलिए हमें रोज इसको करना है क्योंकि हम मसीही हैं। It should not be out of some wrong motivation in your mind. तो ये अपने मन में किसी गलत उद्देश्य से भी ना करें। And prayer should not be a lip service. You just keep saying the same thing again and again and not mean it from the heart. और प्रार्थना जो है वो सिर्फ होठों की सेवा नहीं होनी चाहिए कि हम रोज वही बोलते रहें, बार बार दोहराते रहें। And also, we should remember that prayer is not something to change God's will or twist his arm because we want it that way. और प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की बाहों को मरोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें कोई चीज चाहिए तो उस चीज को साधन करने के लिए नहीं। And we should also not pray like with double mind. Okay, it's fine if I get it or not. I can manage it. तो हम दोहरे मन से भी प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि शायद मुझे ये मिले या ना मिले, मैं तभी कर लेता हूँ। So we read in the Bible that if we are double-minded, let us be sure that we don't receive anything from the Lord. तो वचन में ऐसे लिखा है कि अगर हम दोहरे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमें उनसे कुछ भी नहीं मिल सकता है या नहीं ग्रहण कर सकते हैं उनसे। And we should pray with full confidence that God is hearing us and it should be from our heart. तो हम पूरे मन से और विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना कर सके ताकि हमें जो चाहिए हम उनसे ले सकें। It is not like, okay, today I prayed for an hour, so I'm feeling good, so I'm a good person. तो ऐसा भी नहीं है कि आज मैंने 1 घंटे के लिए प्रार्थना की, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। So when I didn't pray, I feel that, oh, all world is collapsing, I've done something wrong. तो जब मैंने प्रार्थना नहीं की, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्योंकि मैंने आज प्रार्थना की तो मेरा पूरा जो जीवन है, पूरी दुनिया मेरी उजड़ गई है। Sometimes you feel good, okay, you prayed for some time, okay, today I'm a very good person. That's not so. तो कई बार हमें अगर ऐसा लगता है कि मैंने थोड़े वक्त के लिए प्रार्थना में समय बिताया है, इसीलिए मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, तो ये गलत बात है। So these are the things we should not do in prayer. How should we pray actually? How should we pray right? तो अभी हमने जिन बातों का यहाँ पर विवरण किया वो ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए प्रार्थना में। तो हमें फिर कैसे आगे प्रार्थना करनी चाहिए, इसके बारे में हम अभी सीखेंगे। So the first thing is we pray according to the nature of God. तो पहला जो चीज है, हमें परमेश्वर के स्वभाव अनुसार प्रार्थना करनी So चाहिए। we should always know who our God is. तो हमें हमेशा इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है And pray in accordance with that. और उसके अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर एक अच्छा पिता परमेश्वर है। Lord, you are good. I thank you. परमेश्वर, आप अच्छे पिता परमेश्वर हो और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। You are compassionate. आप दयालु परमेश्वर हो। So the Lord is good, He's kind, and He's merciful. तो परमेश्वर आप अच्छे हो, दयालु और
करुणामयी हो। The Bible says Jehovah Jireh, he is our provider. वचन कहता है कि यहोवा यीरे आप मेरे इंतजामी हो। So Lord, you have said, Jehovah Jireh, you are my provider, so you will provide for me. क्योंकि आपने कहा परमेश्वर आप यहोवा यीरे हो मेरे और आप मेरा इंतजाम मेरी जरूरतों का इंतजाम करोगे। Jehovah Rapha, you are my healer, so you will heal me. यहोवा यीरे आप मेरे चंगा करने वाले हो इसलिए आप मुझे चंगा करेंगे। So in order to know God, we should know his word, तो परमेश्वर को जानने के लिए हमें उनका वचन जानना जरूरी है, because that is where he reveals himself to us. क्योंकि वचन वो जगह है जहाँ वो अपने आप को हमारे लिए प्रकट करते हैं। So all that God has revealed to us in his word, that is who he is. He is not a man to lie. तो परमेश्वर ने जो अपने वचन में अपने बारे में हमारे लिए किया हुआ है वो वही है, और क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। So in prayer, he doesn't contradict his character. तो प्रार्थना में वो अपने जो स्वभाव को कभी भी नकारते नहीं हैं। So we should never pray, Lord, if it's your will, heal me. We know for sure it is God's will for us to be healed and be made whole in the name of Jesus. क्योंकि प्रार्थना में जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमें पूरा करेगा, चंगा करेगा और पूरी तरह से अच्छा करेगा, क्योंकि ये उनकी इच्छा है हमारे लिए। And when we pray to God, we trust in his faithfulness, not in our prayer. तो जब हम प्रार्थना करते हैं हम उन पे विश्वास करते हैं और ना कि हमारे प्रार्थना पर। So God's will is done here on earth because of who God is, because he is righteous and he is holy. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यहाँ पृथ्वी पर होती है, क्योंकि वो धर्मी है और क्योंकि वो पवित्र है। So because he is righteous, we just pray in accordance to his will. क्योंकि वो धर्मी है हम उनकी इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं। And the second thing is intimacy with God. तो दूसरा जो है हम देखते हैं वो है परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। So prayer is always birthed from our relationship with God. परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के अनुसार प्रार्थना हमेशा हमसे उत्पन्न होती है। He is our father वो हमारा पिता है and we are his children. और हम उनके बच्चे हैं। So we go to him as we are. तो हम परमेश्वर के पास वैसे ही जाते हैं जैसे हम हैं। So everything that we pray should come in this closeness, this abiding with him. तो हम हर वो चीज जो उनके तरफ प्रार्थना करते हैं वो उनमें रहकर उनमें निवास कर कर याचना प्रार्थना करें। Because we have a relationship with him, we don't need to ask, Lord, may I come to your presence? We don't ask permission in our own house to our parents to enter the house. क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का है, हमें कभी उनके पास जाने के लिए उनकी आज्ञा नहीं लेनी पड़ती। उसी तरह जैसे हम अपने माता पिता के पास जाने के लिए उनकी अनुमति नहीं लेते। Yeah. So if we see in John chapter 15 verse 7, यूहन्ना का 15:7, the Bible says, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। And Psalm 17:4 we read, delight yourself also in the Lord and he shall give you the desires of your heart. भजन संहिता का 4 कोई पढ़ेगा अगर 37:4। No, yeah. So when we submit ourselves to the Lord and we delight ourselves in him, we begin to think like Jesus and we begin to speak like him and we begin to do things like Jesus. जब हम उन पे अपने आप को समर्पित करते हैं तो हम परमेश्वर की तरह, तब हम यीशु मसीह की तरह सोचने और बोलने लग जाते हैं। And we see that in 1 John 3:24, now he who keeps his commandments abides in him and he in him, and by this we know that he abides in us by the Spirit whom he has given us. और 1 यूहन्ना 3:24 में देखेंगे, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है
वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। रूह और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसमें हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। So if we abide in him and his word abide in us, the Bible says, ask what you desire, it will be given. तो वचन कहता है कि अगर हम उसमें निवास करते हैं तो आप जो भी पूछते हैं उसके वचन में रहकर वो आपको मिलेगा। So when we spend time in prayer, it actually tunes our thoughts and aligns our will to God's will. तो जब हम प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं तो हम उसकी इच्छा अनुसार अपने आप को सीधा या एकत्रित करते हैं और उस हिसाब से हम उनसे प्रार्थना कर पाते हैं। So this is one important aspect of prayer, developing the intimacy with our Lord Jesus Christ. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रार्थना जीवन के लिए, हमारे जो परमेश्वर के साथ जिस घनिष्ठ संबंध को और बढ़ाना। So the more we spend time with him, the more we get to know him. हम जितना परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं हम उन्हें उतना ही ज्यादा जान पाते हैं। So only when we know him, we can follow him. हम जब भी हम उन्हें जितना जान पाते हैं उसी हिसाब से हम उनके पीछे चल पाते हैं। So we see that Jesus always prayed. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमेशा प्रार्थना की। So Jesus prayed always to his Father because he wanted to do the Father's will. यीशु ने हमेशा परमेश्वर पिता को प्रार्थना किया क्योंकि वो उनकी इच्छा करना चाहते थे। So it is mentioned in the Bible that Jesus, it was his food to do his Father's will. तो वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु का वो रोटी था या खाना था जो कि वो हमेशा पिता परमेश्वर के लिए की ओर प्रार्थना करते थे, उनकी इच्छा से प्रार्थना करते थे। John 4:34. यूहन्ना 4:34। So food is the one that nurtures us. तो खाना वो है जो हमें शक्ति देता है। So when we do God's will, we are completely nurtured in him. We are nourished by him. तो जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं तो हम उनसे पूरी तरह भरे हुए होते हैं या उससे ताकतवर होते हैं। Our soul prospers in him. तो हमारा मन जो है वो परमेश्वर में आगे बढ़ता है। So in the Bible we see of one character, Moses. This may not be in your notes. Please turn your Bibles to Exodus chapter 33. निर्गमन 33 की ओर बढ़ेंगे, ये आपके नोट्स में नहीं है। वहां हम मूसा के बारे में देखेंगे। Yeah, we see that in Exodus chapter 33 verse 11, the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. तो निर्गमन 33, राइट, सॉरी 33 यहाँ 33 का 11 में देखेंगे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। And in Psalms 103:7 we read, he made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. भजन संहिता 103 का 7वां पद, उससे मूसा को अपनी गीत और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। So Moses is someone who wants to be in the presence of the Lord. तो मूसा ऐसा एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता था। In the same chapter, verse 13, we see Moses is asking God, if I have found grace in your sight, show me your way, that I may know you, that I may find grace in your sight. निर्गमन के 33 अध्याय के 11 पद में हम देखेंगे, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था।
13 पद में देखेंगे, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गीत समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। So Moses is very keen to be and linger in the presence of the Lord. तो अब यहाँ देखते हैं कि मूसा कितना ज्यादा अधिकतर वो चाहता था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। So we'll continue once we come back after our break. Thank you. ब्रेक के बाद इसमें और आगे सीखेंगे। तो 10:35 तक सब वापस आ जाए।